الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی فضیلت اور ذکر کے چند فوائد مختصر انداز میں رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ اور وہ ایسا عمل ہے کہ تمہارے لیے سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ وہ عمل تمہارے لیے میدان جنگ میں دشمن سے ٹکراؤ کے وقت وہ تمہاری گردن مارے، تم ان کی گردن مارو، اس سے بھی افضل ہے، یعنی جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو لوگوں نے کہا بالا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو ذکر کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جو نہیں یاد کرتا ہے، زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کی تشبیہ زندہ آدمی سے دی ہے جو اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، اور وہ آدمی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ میت سے دی ہے، مردہ آدمی سے دی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف صرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ امام بخاری امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر سے روایت کیا ہے۔ ذکر کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے،، کہ اللہ تبارک و تعالی جب وہ
अपने नफ्स में अल्लाह का जिक्र करता है, अपने दिल में अल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने दिल में उसका जिक्र करता है। और अगर वो किसी मजलिस में अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में उसका जिक्र करता है। अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून, तुम मुझे जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुझे याद करूंगा, तुम्हारा जिक्र करूंगा, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे साथ मेरा इनकार मत करो, मेरे साथ कुफ्र मत करो। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे जा रहे थे, मक्का की राह में थे, एक पहाड़ पर आपका गुजर हुआ, उस पहाड़ का नाम जुमदान था। जुमदान एक मक्का से करीब तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे जुमदान एक पहाड़ी का नाम है जो खुलैस मुहाफजा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट खुलैस मक्का के मिंतके स्टेट के ताबे है वो, वहाँ 100 किलोमीटर तकरीबन दूर है मक्का से। वहाँ जुमदान की पहाड़ी पर से गुजरे तो कहा कि सीरू हादा जुमदान सबक़ल मुफर्रिदून, चलो ये जुमदान है, मुफर्रिद लोग आगे बढ़ गए, सबकत कर गए, मुफर्रिद लोग सबकत कर गए। तो उन लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुफर्रिदून कौन है, ये मुफर्रिद लोग कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, वो अल्लाह तबारक व तआला, वो मर्द जो अल्लाह तबारक व तआला को खूब याद करता है, अल्लाह का खूब जिक्र करता है, वज़्ज़ाकिरात वो औरतें जो अल्लाह को का खूब जिक्र करती हैं। क्योंकि इन लोगों ने जब दुनिया अपने कारोबार में मशगूल थी, जब इसके साथी इसके हमअस्र अपने कामों में मशगूल थे, इन लोगों ने खुद को अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के लिए खास कर लिया। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न बुस्र से रवायत है कि एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम क़वानीन तो मेरे लिए बहुत हैं, कुछ थोड़ी सी चीज़ें मुझे बता दीजिए जिन पर मैं मजबूती से जमा रहूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालु लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, के वो थोड़ी सी चीज़ क्या है, तुम्हारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह की याद और जिक्र से तर रहे। इमाम तिर्मिज़ी ने इसको रवायत किया है और अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। इस आदमी के कहने का मतलब ये था कि फराइज, सुनन और नवाफिल की शक्ल में नेकियों की बहुत ज़्यादा कसरत है, बहुत सारी नेकियां हैं, लेकिन कोई मुझे एक ऐसा जामे नुस्खा बता दीजिए कि जिससे सिर्फ फराइज और सुनन पर अगर अमल कर सकूं, फराइज और सुनन पर अमल कर सकूं और नवाफिल और मुस्तहब्बात रह जाएं, नफल इबादतें न कर सकूं, तो मेरी नेकियां कम न हो बल्कि मेरी नेकियों में इजाफा होता रहे। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को तर रख, हमेशा अपने रब को याद कर, अपने रब का जिक्र कर, दायमी मामूल बना ले। ऐसा अगर तू करेगा तो नवाफिल और मुस्तहब्बात पर अमल न करने के बावजूद जिक्र इलाही की कसरत से उसका इजाला हो जाएगा। क्योंकि नवाफिल और मुस्तहब्बात इबादत का असल हासिल यही है कि बंदा बारगाह इलाही में अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का नजराना पेश कर सके। तो आदमी अगर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, तो वो आजिज़ी का नजराना वो पेश करता है। मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की बहुत ज्यादा फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला को याद करने की बेशुमार फजीलतें हैं और उसके जितने फ़वाइद हैं, अगर उन्हें जिक्र किया जाए तो लंबा वक्त चाहिए, लेकिन उनके फ़वाइद में से चंद फ़ायदे मैं आपके सामने मुख्तसर रख रहा हूँ। अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान हासिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला से करीब होता है बंदा, और जब उसको कुर्बत का एहसास होता है अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत का, तो उसके दिल के अंदर इत्मीनान हासिल होता है कि उसने अपने रब को, अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने रोज़ी देने वाले परवरदिगार को उसने याद किया है। और इसी तरह जिक्र करने से दर्जात में बुलंदी हासिल होती है, इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने से अल्लाह ताला
गुनाहों की माफ़ी देता है, जिक्र करने से गुनाहों की माफ़ी होती है। अल्लाह ताला फरमाता है वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरन वद्दाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जो मर्द और जो औरतें अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा जिक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के लिए, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए मग़फ़िरत तैयार कर रखा है और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है, सवाब तैयार कर रखा है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, उस जिक्र की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसी तरह जिक्र के फ़वाइद में से एक फ़ायदा यह है कि जिस आदमी के पास हज, जिहाद और सदका व खैरात करने के मौक़े नहीं है, उसको इस्तिताअत नहीं है, उनके लिए जिसके पास भी, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र नेकियों के हुसूल के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। जो आदमी वो नेकियां जो उसकी इस्तिताअत से बाहर नहीं कर सकता, हज नहीं कर सकता, इस्तिताअत नहीं है, माजूर है, पैसा नहीं है कि हज कर सके, इसी तरह उसके पास दौलत इतनी नहीं है कि वो अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात कर सके, ज़कात दे सके, इसी तरह जिहाद के मौक़े हासिल नहीं है, तो ऐसा आदमी अल्लाह का जिक्र करके इन नेकियों और इन इबादत का सवाब पा सकता है, अपनी नेकियों में इजाफा कर सकता है। इसी तरह इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है तो वो निफाक से बरी हो जाता है, उसके दिल से निफाक निकल जाता है, क्योंकि जिस मुनाफिक के दिल में निफाक हो, जिसके दिल में निफाक हो, वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से भागता है, जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से रूगर्दानी करता है, क्योंकि वो ईमान ही इसलिए लाया है कि दिल में ईमान छुपाए और जाहिर इस्लाम को जाहिर करे। तो जो आदमी अल्लाह का जिक्र अगर तन्हाई में और दिल में करता है, गोया उसके दिल में निफाक नहीं है, निफाक से वो बरी हो गया। इसी तरह जो जिक्र करता है, शैतान को इस जिक्र से धुतकार हासिल होती है, शैतान धुतकारा जाता है। इसी तरह जब इंसान जिक्र करता है तो रहमान और रहीम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला बंदे से राज़ी होता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे का जिक्र करता है, अपने दिल में भी करता है, मजलिसों में भी करता है। इसी तरह इंसान जिक्र करने से, अल्लाह का जिक्र करके गम और मायूसी से दूर होता है। इंसान जब गमगीन हो, मायूस हो, जब अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दिल को तशफ़ी और तसल्ली हासिल होती है और अल्लाह तबारक व तआला की मदद की उम्मीद उसे हासिल होती है। और इसी तरह जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके रिज़्क़ में बरकत होती है। इसी तरह अल्लाह का जिक्र करने से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। इसी तरह मसाइब में, मुसीबतों में और तकलीफ़ों के वक्त इंसान जब अल्लाह को जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, तो उसको सब्र और इस्तिबात का हासिल होता है और वो सब्र का सबब बनता है उसका जिक्र करना, और ये सब्र उसके अंदर कूट कूट करके भर जाता है और इंसान के अंदर से बात कदमी आ जाती है। इसी वजह से जिस बात कदमी का हुक्म कुरान मजीद के अंदर दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ईमान लाओ और उसके बाद कहो इस्तिकामत बरतो। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर इस्तिकामत बरतो। तो इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो वो ईमान के अंदर उसके ईमान के अंदर मजबूती आती है और फिर उसके अंदर इस्तिकामत आती है और वो सब्र करता है मुसीबतों पर, मसाइब पर, तकलीफों पर। इसी तरह अल्लाह के जिक्र से जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो बहुत सारी गुनाहों से और मासियतों से महफूज हो जाता है, जैसे गीबत, चुगली और फहश गोई और बुरा भला कहने से इंसान महफूज हो जाता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करते वक्त उसे अल्लाह तबारक व तआला की याद उसके दिल में बैठती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला को याद करके ये समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके आमाल को देख रहा है और ये जिक्र करने की वजह से वो इन गुनाहों से महफूज होता है और उन गुनाहों से बाज रहता है। इसी तरह इंसान जब अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके इरादगी में, अज़्म व इरादा में पुख्तगी आती है और उसका अज़्म व इरादा पुख्ता होता है, किसी चीज़ से डरता नहीं, किसी चीज़ से मायूस नहीं होता। इसके अलावा भी अल्लाह के जिक्र के बहुत सारे फ़वाइद हैं।
اللہ لہٰذا ایک مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر جگہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، راستے میں ہو، سواری پر ہو، جس قدر ہو سکے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ وہ جگہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا حکم ہے اور سنت میں جس کی وضاحت ہے اس پر تو عمل کرے ہی، اس کے علاوہ بھی جب بھی مواقع اسے میسر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ وہ مواقع جہاں پر حدیثوں میں حکم دیا گیا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، وہ مواقع نماز کے بعد ہے، نماز کے بعد ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، قضاء حاجت کے وقت، اسی طرح کوئی کام شروع کرتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، اور اسی طرح سوتے وقت، جاگتے وقت، جو بھی وقت ہے، جو بھی اوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی انسان جہاں بھی ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو، کیونکہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جہاں ذکر کرتا ہے وہ جگہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گواہی دیں گی کہ اللہ تیرے اس بندے نے تیرا ذکر میرے سامنے کیا تھا، میرے اوپر کھڑا ہو کر کے کیا تھا، میرے اوپر بیٹھ کر کے کیا تھا۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن جو بھی انسان ذکر کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لائے گا اور پیش کرے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان ذرہ برابر بھی، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھائے گا، اس نیکیوں کو دیکھے گا، کہاں کیا تھا، کیسے کیا تھا، کتنا کیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو اس کی بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمادم ہر وقت ہر جگہ اپنے ذکر میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے ذکر سے ہمیں غافل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔